Hello and welcome guys, and welcome to yet another vlog. And yes, in this vlog we are going to discuss the amendments which have been introduced in 2018 in the company's cost records and audit rules 2014. But before we come on to the amendments, guys, a quick time check. September has almost ended. Now you are left with October, November. So 2 more months to go for your examination. Please work hard. Please dedicate yourself fully to your examination. Get rid of all these time wasters like Facebook, like Twitter, like WhatsApp. These will just waste your time and do no good to you. Once you qualify, you have entire life to do all these stuff. So no more gyan from me now, and let me come on to the amendments which have been released in the company's cost records and audit rules 2014. And yes, the amendments are not much in quantity, but yes, qualitatively these amendments have material impact. So in some of the amendments, the institute has increased, or the Ministry of Corporate Affairs has increased the scope of the products which have been introduced in the rules, which is rule number 3. And in some other instances, we have cases where the rules have been made in parity with the Companies Act 2013. So let's start the amendments in the rules. So these are applicable from December 2019 attempt exams of CMA final paper number 19, and yes, for onwards attempt also, if you are giving June 2020, December 2020, then also these amendments will form a part of your curriculum. So I've divided the discussion in 2 parts. One where I'm going to tell you the old provision, and other is I'm going to tell you the amended provision. So let's start with rule 3. Application of cost records, category B, goods and services. Now category B goods are non-regulated goods and services, and category A are regulated goods and services. So there have been changes in category B, which is non-regulated goods and services. The service which is related to port services of stevedoring, pilotage, hauling, mooring, remooring, hooking, measuring, loading, unloading services rendered by a port in relation to a vessel or a good. So guys, all these services which are provided in a port, like loading, like unloading, like pilotage, hauling, mooring, so all these terminologies have some activities connected to them which are provided during the shipping business, when ship is landing in the coming to the port, and it's being hooked, it's being hauled, its goods are being loading and unloading. So all these services are covered under rule 3. Now what is the change? The change is that earlier word used was by a port. Now the word used is for a port, which means that earlier any private parties who were providing goods who were providing services to a port of hauling, mooring, pilotage, stevedoring were not covered under these rules. But now onwards, the private concerns also who are providing all these services will be applicable under these rules. So earlier it was services rendered by a port. So if port is rendering services, then your rules will be applicable. But now it is services rendered for the port, which means that if a private company is providing these services for the port, then also you are covered under rule 3. So that is the major difference between earlier rule and the current rule which has been amended. Now sir, what is this bold highlighted portion? Guys, this is regulated by tariff authorities for major ports under Major Port Trust 1963. So this is an act under which ports are governed, their activities are governed, and all these services are again regulated by these ports authority, the port authority for major port under Major Port Trust Act 1963. So the difference is only a word, by to for, but the impact is much more than that. The impact is that all those parties who are covered under port services of providing any of these services which are mentioned here would now be covered under the amended rules. Alright sir, got it. So the second change is with respect to the aeronautical services, again a service which is categorized under category B. Aeronautical services, and again the difference is, earlier it was said that air traffic management, aircraft operation, ground safety services, ground handling, cargo facility, supplying fuel rendered by an airport. So all these services which were provided by an airport were covered under the category of rule 3. Now
it is said that all these services which are rendered at the airport, if the services are rendered at the airport, then these will come under the category of Rule 3. So again, a similar change. So you have to understand that for port services and for aeronautical services, this is a change which has happened in the rules. Okay, and the last change which has happened in Rule 3, guys, there's a category called paper. Now, pulp is also added in that category. So now, even if you are producing pulp, which is the raw material for producing paper, then also you are covered under these rules. So a small change, but yes, a significant one, because the examiner can play around with you in MCQs in true or false or fill in the blanks, whereby he can give you all these tricky ones. Yes, sir. Now coming on to Rule 6, the last amendment which has come up in rules is in Rule 6. So earlier there was no provision in this respect in Rule 6, but now there is a proviso which has been added, and let's see what the proviso is. But before reading the proviso, I would like you to read the section which is presented in the footnote, which is section 96 of the Companies Act 2013. Let's read the section. It's the section about annual general meeting, AGM. Every company other than a one-person company shall each year hold, in addition to any other meeting, a general meeting at its general meeting as its general meeting, and shall specify the meeting as such in notice calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one AGM and that of next AGM, provided that in a case of first annual general meeting it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of first financial year of the company, and in any other case within a period of 6 months from the date of closing of the financial year, provided further that if a company holds its first AGM as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation. And now the proviso which is relating to us and which will impact us majorly in the recent amendment which has come by, provided also that registrar may, it is the authority and power delegated to the registrar may for any special reason extend the time within which AGM meeting other than first AGM meeting shall be held by a period of not exceeding 3 months. So if you take permission from the registrar, section 96 provides for that you can have an extension of 3 months for such AGM. Now sir, how does it impact us? Guys, it impacts us majorly because even our rules require our board of directors to fill in the form CRA4 and submit it to the ministry within 30 days of submission of the auditor's report. Now the problem is, unless and until the cost audit report is also presented in AGM, so some companies follow this procedure of presenting cost audit report in AGM and discussing it at least, unless that procedure happens, it is not possible for the board of directors to complete that form and submit it to the government. So what proviso has been inserted in Rule 6? Let's see. Provided that companies which have got extension for time of holding AGM under section 96 of the Companies Act may file form CRA within the resultant extended period of filing financial statements under section 137 of Companies Act 2013. So this section gives you a leeway if you are willing to extend your AGM's period, and which is within 3 months as per the section 96, and you've taken permission from the registrar to shift your AGM, then yes, your limit of submission of form CRA4 also extends by that time. So you have a leeway of window of 3 months to submit your CRA4 as well. So this is the amendment which has come by in Rule 6. So yes, these are the limited amendments which have come in rules. There's no other amendment which has come in rules in 2018 syllabus. All of you who have my old book, they can easily have these amendments marked in their old book, and their old book is good to go for December 2019 attempt. And yes, I am coming up with CAS 4 revised version as well. So stay tuned. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं CAS 4, और वो भी रिवाइज्ड वर्जन CAS 4 का। और हाँ, अमेंड हो गया था, CAS 4 एप्लीकेबल हो गया था 1 मार्च 2019 से,
बट द फर्स्ट एग्जामिनेशन जिसमें ये आएगा और जब ये एप्लीकेबल होगा वो होगा दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन। और दिसंबर 2019 एग्जामिनेशन के बाद सारे ऑनवर्ड एग्जामिनेशन में रिवाइज्ड कैस ही एप्लीकेबल होगा, विच इज कैस 4 रिवाइज्ड वर्जन। सर ये फर्क क्या है कैस 4 ओल्ड में और कैस 4 न्यू में, सबसे पहले तो ये बता दीजिए। तो भाई कैस 4 ओल्ड में और कैस 4 न्यू में बस इतना सा फर्क है कि कैस 4 ओल्ड कैप्टिव कंजम्पशन का कैस हुआ करता था, जो एक्साइज ड्यूटी जब हमारा रेजीम था वो उस समय एप्लीकेबल कंसेप्ट था, एक्साइज ड्यूटी ऑन कैप्टिवली कंज्यूम्ड गुड्स। लेकिन अब जब जीएसटी रेजीम आ गया तो भाई कैप्टिवली कंज्यूम्ड गुड्स का कंसेप्ट ही हट गया। अगर वो कंसेप्ट ही हट गया तो पुराने वाला कैस इररेलेवेंट हो गया। तो सर अगर कैप्टिव कंजम्पशन का कंसेप्ट ही हट गया जीएसटी में से, तो फिर हम ये कैश किस पे अप्लाई करेंगे? भाई ये कैश हम अप्लाई करेंगे उन प्रोविजंस पे जहां पर जीएसटी के कुछ रेजिडुअल कैटेगरीज हैं रूल 30 के अकॉर्डिंग। और उन रेजिडुअल कैटेगरीज में ऐसा बोला गया है कि अगर आप जो नॉर्मल रूल हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप वैल्यूएशन ना कर पाए किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप रेजिडुअरी वैल्यू उसकी निकाल लीजिए। कैसे? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि 110% तो फिक्स्ड है भाई, प्रॉफिट मार्जिन है ये, जो एक नोशनल प्रॉफिट मार्जिन है जो हम ऐड करेंगे। बट सर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेकर आए? तो जैसे अर्लियर कैस 4 में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके आते थे एक्साइज ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से कैस 4 से, वैसे ही अब जीएसटी के रेजिम में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके आएंगे न्यू कैस 4 के परव्यू से और उसके प्रोविजन से। तो आओ स्टार्ट करते हैं रिवाइज्ड कैस 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इसकी देखना फुटनोट 1 में एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2019 विल अप्लाई फॉर प्रेजेंटेशन सर्टिफिकेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ठीक है सर, तो आओ देखते हैं ये कैस क्या कहता है। The CAS 4 revised 2018 deals with determination of cost of production or acquisition of supply of goods or provision of services or both। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैस का? इस कैस का भाई ऑब्जेक्टिव है कि हम डिटरमाइन करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एक्विजिशन या सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या दोनों का कुछ भी अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना हो तो ये कैस हमें बताएगा कि वो कैसे निकलना चाहिए। The standard deals with principles and methods of। अब देखो क्या तीन चीजें जो स्टैंडर्ड है भाई, सारे कैश में हम इन्हीं तीनों चीजों से डील करते हैं। हमें क्लासिफाई कैसे करना है अपना कॉस्ट वो बताएगा, मेजर कैसे करना है मतलब कितना अमाउंट कॉस्ट शीट में लेके जाना है ये पता लगेगा, और फिर उसे एलोकेट या असाइन कैसे करेंगे हम वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, ये हमें पता लगेगा इस कैश से। ऑब्जेक्टिव, अब देखना इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जरा मुझे बता दो, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी दोनों एक चीज या दोनों अलग अलग चीज? सर दोनों अलग अलग चीज। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सिमिलर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस जैसे होने चाहिए, और कंसिस्टेंसी का मतलब ईयर ऑन ईयर 2018, 19, 20 आपके कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम होने चाहिए। तो दो चीजें इंश्योर करनी है, और वो हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। एक तो भाई यूनिफॉर्म होने चाहिए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, जो GACAP जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हम काम कर रहे हैं, वो सब सिमिलर होने चाहिए। सो देयर हैज टू बी यूनिफॉर्मिटी इन प्रिंसिपल्स। नंबर 2, देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी इन प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये ईयर ऑन ईयर हमारे प्रिंसिपल्स सेम रहने चाहिए किसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डील करते हुए या कोई भी कॉस्टिंग का प्रोसीजर करते हुए। सर ऐसा होता क्यों है भला? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने जो इंडस्ट्री है उसके भी सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करें और ईयर ऑन ईयर भी हम अपने कॉस्टिंग के प्रिंसिपल सेम रखें? सर अगर हम ईयर ऑन ईयर चेंज करना चाहते हैं उसमें दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत यह है आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, कोई कंपेरेबिलिटी नहीं रह पाएगी अगर आप ईयर ऑन ईयर अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करोगे। फिर जब यूजर के हाथ में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे तो वो कंफ्यूज रहेगा कि पता नहीं आपने इस बार कौन सी पॉलिसी यूज करी है, पिछली बार कौन सी पॉलिसी यूज करी थी, पिछली बार कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या था, इस बार क्या है। यूजर हमेशा कंफ्यूज रहेगा। इसलिए ये दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में कि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को हमें ऑब्टेन करना है, हमें इंश्योर करना है। ठीक है सर, अब आओ जीएसटी एक्ट के वो रूल्स पढ़ते हैं, वो सेक्शंस पढ़ते हैं जिसके तहत हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने की जरूरत हमें महसूस होती है। वो क्या है? एज पर सेक्शन 51 ऑफ द CGST एक्ट, वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई
आर नॉट रिलेटेड पार्टी, अगर आप रिलेटेड पार्टी नहीं हो एंड द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, और अगर प्राइस ही उसका सोल कंसिडरेशन है सप्लाई का, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. Rule 27, 28 and 29 of CGST rules provide for methodologies for determination of value of supply under certain situations. तो भाई मुझे ये रूल इन डेप्थ तो नहीं पता, हाँ इतना पता है कि हम सिमिलर गुड्स, कंपेरेबल गुड्स और प्राइस जिस तरह के आपने मेंशन किए हुए हैं, अपने एमआरपी जिस तरह की मेंशन करी हुई है, जिस रेट पे आपने सिमिलर गुड्स बेचे हैं, वो होती हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू के तीन रूल्स 27, 28, 29, इसके तहत आपको अपनी वैल्यूएशन करनी होती है किसी भी गुड की. ठीक. In case value of supply is not determinable, suppose आप रूल 27, 28, 29 तीनों रूल से आप अपने सप्लाई की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, the same shall be determined by application of rule 30 और रूल 31 इन दैट ऑर्डर. तो पहले रूल 30 अप्लाई करोगे, रूल 31 अप्लाई करोगे. ये रेजिडुअरी कैटेगरी है भाई वैल्यूएशन की जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग. तो अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है वैल्यूएशन करने का, आप इन रूल्स की शरण ले लोगे. और भाई ये रूल्स क्या कहते हैं? ये रूल्स बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल बात है. वो क्या है? As per rule 30, the value shall be 110% of cost of production. 110% तो मिनिस्ट्री ने कर दिया फिक्स, इतने से ज्यादा तो आप प्रॉफिट मार्जिन लगा ही नहीं सकते, और कह दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%. तो अब सवाल ये उठता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये तीन वर्ड्स कहां से डिटरमाइन होंगे? जी हां, ये तीन वर्ड्स कैस 4 के प्रिंसिपल से डिटरमाइन होंगे. तो देखना, सीधा सीधा लिंक है कैस 4 का जीएसटी पेमेंट से. और एक बिजनेसमैन डरेगा, जैसे कैस 4 अर्लियर से डरता था ना, कैस 4 अर्लियर को मैंने नाम दिया था राक्षस कैस, वैसे कैस 4 न्यू को भी मैं नाम दूंगा राक्षस कैस, क्योंकि अब एक बिजनेसमैन डरेगा. अगर बिजनेसमैन ने कैस 4 को नहीं फॉलो किया तो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ सकती है. और ना केवल जीएसटी की लायबिलिटी बढ़ेगी, बल्कि इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, पेनल्टी भी बढ़ेगी, प्रोसिक्यूशन का भी रिस्क मंडराएगा एक बिजनेसमैन के सर के ऊपर. तो ये कैश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जीएसटी की लायबिलिटी इस वाले कैश पर निर्भर करेगी एक बिजनेसमैन के लिए. ठीक है सर, आओ कैश का मेन पार्ट शुरू करते हैं. स्कोप. This standard should be applied to cost statements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of related cost for determination of following under the relevant provisions of GST Act. Number 1, determination of cost of production of goods, cost of acquisition of goods, cost of supply of goods, cost of provision or supply of services, and determination of value of supply of goods or services as per open market value और एज पर गुड्स सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी. तो आपको किसी भी तरह से रेजिडुअरी मेथड से अगर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है तो आप ये कैश को फॉलो करोगे, कैश 4 को फॉलो करोगे. ठीक है सर. डेफिनेशन. कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है भाई? द कॉस्ट ऑफ परचेज और एक्विजिशन ऑफ गुड्स कंप्राइज द फॉलोइंग: परचेज प्राइस, इसकी परचेज प्राइस जो होगी, इंपोर्ट ड्यूटीज, अदर टैक्सेस, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, टैक्सेस एंड ड्यूटीज. तो कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे करी है या कोई भी टैक्स पे किया है, हाँ अगर रिफंडेबल है ना तो ऐड मत करना, और अगर उसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल गया तो भी भाई ऐड मत करना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना ताकि आपका कॉस्ट ऑफ परचेज निकल के आ जाए. अब एक चीज बता दो, डिस्काउंट ना दो टाइप के होते हैं, एक तो है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट. भाई कैश ने ना ट्रेड डिस्काउंट तो मेंशन कर दिया, सर यहां कैश डिस्काउंट नहीं मेंशन किया. अरे कोई बात नहीं, कैश लिखने वालों से गलती हो जाती है, कभी कभी हो सकता है गलती हो, तो तुम यहां ऐड कर दो कैश डिस्काउंट. नहीं भाई नहीं, ये गलती नहीं है, दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट. कैश इज लाइक योर बाइबल, कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए ये बाइबल है. इसका कोई भी शब्द, इसका कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता. आपको इसको इन प्रिंसिपल फॉलो करना है, जरूर कोई लॉजिक होगा कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का. तो सर बता दीजिए क्या लॉजिक है कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का? भाई कैश डिस्काउंट को यहां ना लिखने का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है. लॉजिक ये है, कैश डिस्काउंट इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंस इनकम.
जैसे फाइनेंस कॉस्ट होती है ना भाई, आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हुए आपने देखा कि कितना अमाउंट ड्यू है, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया, दैट इज नोन एज फाइनेंस कॉस्ट। सिमिलरली ये जो कैश डिस्काउंट है, दिस इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंस इनकम। तो जैसे कैश फाइनेंस कॉस्ट आप एक्सक्लूड करते हो अपने कॉस्ट शीट से, हर एक केस में हमने स्टैंडर्ड प्रिंसिपल पढ़ा है कि फाइनेंस चार्जेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वैसे ही आपको कैश डिस्काउंट जो कि फाइनेंशियल इनकम के नेचर का है, आपको उसको भी एक्सक्लूड करना है व्हाइल कंप्यूटिंग योर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड है ये, सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल सेम लिखा हुआ है भाई, ट्रेड डिस्काउंट का को तो माइनस करना परमिटेड, लेकिन कैश डिस्काउंट को माइनस करना परमिटेड नहीं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ट्रांसपोर्ट, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी और कॉस्ट है जो आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सको गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कॉस्ट आप ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ परचेज या एक्विजिशन में। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप कैसे कॉस्ट एसरटेन करोगे? यहां पर आप ट्रेडर होंगे भाई, आप सिर्फ परचेज कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, एक्विजिशन कर रहे थे, तो यहां पर एक्विजिशन की बात है। अब बात आ जाती है मैन्युफैक्चर की, कि आप बना रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक्चुअली जो प्रोडक्ट का यूटिलिटी है उसे चेंज कर रहे हो, उसका ढंग चेंज कर रहे हो, उसका रूप चेंज कर रहे हो, कुछ मटेरियल आप चेंज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग। आओ देखते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कंसिस्ट्स ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, direct wages and salaries, direct expenses, works overheads, quality control cost, research and development cost, packing cost, administrative overhead relating to production। तो सर बाकी सारी चीजें तो समझ में आ गई, मटेरियल कंज्यूम जितना भी हुआ, डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज ऑफ कोर्स आपको ऐड करना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए, वर्क्स ओवरहेड ऐड करने चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस ऐड करने चाहिए, R&D, पैकिंग कॉस्ट। सर ध्यान दें, ये लास्ट वाला आइटम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। भाई फंडा बहुत क्लियर सा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन में काम आते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं बोलते, उनको हम प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं। याद है कैस 1 में हमने ये प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन में काम आ रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रहा ही नहीं भाई, वो क्या बन गया? वो बन गया प्रोडक्शन ओवरहेड। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका हेड ऑफिस है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्री है, वो बिलोंग करती है चंबल में। चंबल में आपकी फैक्ट्री आपने एस्टैब्लिश करी है, जी हाँ, डाकुओं का प्रदेश है, उसके बीचों बीच आपकी फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड है। तो एक रिसेप्शन है जो आपने दिल्ली में रखा हुआ है, वो रिसेप्शन आपका दिल्ली में मेंटेन होता है। दूसरा रिसेप्शन है जो जहां आपकी फैक्ट्री है वहां पर वो रिसेप्शन मेंटेन हो रहा है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल सर्विसेज चल रही हैं, मैनेजमेंट की, जनरल मैनेजमेंट की सर्विसेज चलती हैं। अब दिल्ली में जहां आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां का जो रिसेप्शन है उसका खर्चा तो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, लेकिन वो जो रिसेप्शन चंबल में है ना, फैक्ट्री में क्योंकि वो फैक्ट्री में असिस्ट कर रहा है, वो रिसेप्शन का खर्चा जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड स्पेंट फॉर फैक्ट्री एंड वर्सेस स्पेंड फॉर नॉर्मल वर्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑफिस, लाइक कॉर्पोरेट ऑफिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जी हाँ, हम आगे के भी सारे केस में सेम यही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे और जो टुकड़ा प्रोडक्शन से रिलेटेड है हम उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड है। सर सर्विसेज प्रोवाइड करने में मटीरियल कैसे कंज्यूम हो सकता है? अरे भाई, सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी मटेरियल कंज्यूम होता है। जब आप बार्बर के पास जाते हो तो क्या वो क्रीम आपको यूज नहीं करता? क्या वो शेविंग फोम आपको यूज नहीं करता आपके सर पे, आपके फेस पे? तो इस तरह की चीजें जो नॉर्मल सर्विसेज देते हुए भी मटेरियल की तरह यूज होती हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ऐसा हो सकता है कि सर्विसेज देते हुए भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा हो। Direct employee cost, direct expenses, quality control, research and development cost, operation overheads and administrative overheads relating to provision of services। तो हाँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के।
अब आओ चलते हैं प्रिंसिपल्स फॉर मेजरमेंट। अब आप मेजर कैसे करोगे? आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के लाना है, आप कैसे पता लगाओगे कौन सा खर्चा हम ऐड करें, कौन सा खर्चा ऐड ना करें, कितना खर्चे को अमोर्टाइज कर दें आगे के सालों में, कितने खर्चे को करंट ईयर में डेबिट कर दें अपनी कॉस्ट शीट के अंदर, ये सब आप पता कैसे लगाओगे? आओ देखते हैं। Cost of production or acquisition of goods or provision of services like employee cost, utility cost, direct expenses cost shall be measured for each type of goods or services separately। तो भाई सबसे पहला प्रिंसिपल आपका जो कैस आपको बोलता है वो ये बोलता है कि सर हर सर्विस और हर प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट अलग बननी चाहिए। हर सर्विस और हर प्रोडक्ट का कॉस्ट का एलिमेंट लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट, लाइक यूटिलिटी कॉस्ट, लाइक लेबर कॉस्ट अलग अलग बनना चाहिए। खिचड़ी मत पकाओ, एक ही कॉस्ट शीट में सारे के सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का मेंशन मत करो। सो ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शैल बी मेंटेन्ड सेपरेटली। आपको सेपरेटली मेंटेन करना है, प्रिंसिपल नंबर 1। Next, the material cost of normal scrap or defectives which are rejects shall be included in the material cost of goods produced or services provided। भाई ये तो अपना कॉमन प्रिंसिपल, जितना भी नॉर्मल लॉस होता है मटेरियल का, अगर कोई प्रोडक्शन के दौरान नॉर्मल लॉस हुआ उसे एब्जॉर्ब करा दो बाकी के सारे यूनिट्स में। याद है हमने कैश 4 में एक क्वेश्चन किया था, अर्स्टवाइल कैश 4 में, जिसके अंदर हमने जो लॉस था, नॉर्मल लॉस था, वो हमने बैलेंस गुड्स में लोड कर दिया था। अगर आपने पुराने वाला कैश 4 नहीं किया तो घबराना मत, अभी हम अगला जो कैश शुरू करने जा रहे हैं 5 के बाद वो है 6 मटेरियल कॉस्ट, उसमें भी हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे कि नॉर्मल लॉस जितना भी होता है वो बैलेंस यूनिट्स पे एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये प्रिंसिपल बोल रहा है अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हुए आप उसे एब्जॉर्ब करा दोगे बैलेंस प्रोडक्ट्स में, मतलब कॉस्ट शीट में उसे ऐड करोगे नॉर्मल लॉस को। रियलाइज्ड और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, अगर स्क्रैप से कुछ पैसा मिल गया, स्क्रैप को बेच के कुछ पैसा आ गया, क्या करना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, हम लोग उसे डिडक्ट कर देंगे। शैल बी डिडक्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव्स, अगर एबनॉर्मल रीजन की वजह से भाई कोई स्क्रैप आया आपके प्रोडक्शन के दौरान, ऑफ कोर्स सर हम इसे नहीं लेके जाएंगे कॉस्ट शीट में और हम इसको सीधा लेके जाएंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट बट ट्रीटेड एज लॉस आफ्टर डिडक्टिंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच स्क्रैप और डिफेक्टिव्स। और ये कहां जाएगा? ये जाएगा सीधा कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। इफ गुड्स आर ट्रांसफर्ड, डिस्पैच्ड और सप्लाइड ड्यूली पैक्ड, the cost of such packing shall be included in cost of goods transferred, dispatched और supplied। अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हुए कुछ पैकेजिंग करते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक एसेंशियल एलिमेंट होता है ना भाई पैकेजिंग, पैकेजिंग के बिना गुड बिकेगा कैसे? और जी हाँ, हम प्राइमरी पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग की बात नहीं कर रहे। तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कैस 1 में, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स। वही हम यहां पर प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे कि अगर कोई पैकेजिंग यूज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगी। तो देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात, 110% पे जीएसटी पे होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम आपकी जीएसटी लायबिलिटी उतनी कम। तो एक बिजनेसमैन क्या कोशिश करेगा हमेशा कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम 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 से कम होता रहे, और रेवेन्यू अथॉरिटीज क्या कोशिश करेंगी कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता रहे, क्योंकि 110% को तो छू नहीं सकते, उसको तो टच कर नहीं सकते। तो हम टच किस चीज को करेंगे? हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टच करेंगे। तो यहां पर स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, जो बिजनेसमैन तो कहेगा अरे नहीं नहीं ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, ये प्रोड्यूस थोड़ी हुआ है, ये प्रोडक्शन थोड़ी है, तो पैकेजिंग कर रहे हैं हम। लेकिन कैश क्या बोलता है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए पैकिंग मटेरियल कॉस्ट भी। ठीक है सर। अब आओ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट, हाई वैल्यू स्पेयर्स। अगर आपके कोई बड़े महंगे स्पेयर पार्ट्स हैं जो मशीनरी में आपके लगते हैं और आप वो मशीनरी के पार्ट्स रिप्लेस करते हो, नए मशीनरी के पार्ट्स लगाते हो, पुराने जब घिस जाते हैं तो नए वालों को उनको फिट कर देते हो, हाई वैल्यू स्पेयर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज पीपीई, उनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह रिकॉग्नाइज कर लो। सर ये वर्ड कहां से आता है पीपीई? ये तो आप फिक्स्ड एसेट्स बोल रहे हो। अरे हाँ भाई सेम बात है, पीपीई और फिक्स्ड एसेट्स मतलब बात बिल्कुल सेम, बस पीपीई कहां से आ रहा है? इंड एएस से बोरो किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ने क्या कोशिश करी? इंड एएस की टर्मिनोलॉजी से अलाइन करने की कोशिश करी, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के अकॉर्डिंग बनते हैं, हमारी कॉस्ट शीट भी टर्मिनोलॉजी के मामले में उसके इक्वल रहे। तो हमने जो वर्ड्स यूज करने की कोशिश करी है ना, वो पैरिटी के साथ हैं विद इंड एएस, इसलिए वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो इंड एएस वाले वर्ड्स यूज हुए हैं। तो हाँ, डर घबराओ मत, फिक्स्ड एसेट ही है, बट नाम क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
So high value spares shall be recognized as property, plant and equipment when they meet the definition of property, plant and equipment and depreciated accordingly. तो अगर तो हाई वैल्यू स्पेयर आप बोलते हो सर ये तो ना बहुत महंगे स्पेयर हैं और ये लॉन्ग टेन्योर तक हमारा साथ देंगे, हमको कुछ बेनिफिट पहुंचाएंगे, 12 महीने से ज्यादा ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तो मैं तुम्हें कहूंगा भाई उनको पीपीई रिकॉग्नाइज करो और डेप्रिशिएट करो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये स्पेयर 4 महीने चलता है, 5 महीने चलता है, तो क्या करोगे? Otherwise, such item are classified as inventory and recognized in cost as and when they are consumed. इन्हें इन्वेंट्री की तरह लेके जाओ और जब जब कंज्यूम हो जाए तब तब आप इनको कॉस्ट शीट में डाल दो। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। डेप्रिसिएशन कब आप स्टार्ट करोगे किसी भी इक्विपमेंट का? जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया, मतलब रेडी टू यूज हो गया है। ध्यान रहे, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या अवेलेबल फॉर यूज और पुट टू यूज सेम बात है? नहीं भाई, अवेलेबल फॉर यूज और पुट टू यूज सेम बात नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज हमेशा पहले होता है, पुट टू यूज हमेशा बाद में होता है। तो हमारा कैश क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? हमारा कैश कह रहा है जब भी अवेलेबल फॉर यूज हो हमारा एसेट, तब से डेप्रिसिएशन लगानी शुरू करना और कॉस्ट शीट में ऐड करनी शुरू करना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसका पार्ट बनाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। हाँ, नॉन कैश जरूर होता है। तो सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? इंटरेस्ट और एनी फाइनेंशियल चार्जेस और एनी बोरोइंग कॉस्ट, दैट इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज वेरी मच एन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कॉस्ट शीट में जाता है और हर कैश में हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है सर। So when it is available for use, when it is in location condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाई वर्ड है, intended by the management। जो मैनेजमेंट इंटेंशन एक एसेट की है, मैनेजमेंट की मंशा जिस तरह की है उस एसेट को यूज करने की, जब वो उस कंडीशन में आ जाए तब उस एसेट का डेप्रिसिएशन लगना शुरू होता है। अब मैं ना तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताना डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा या नहीं होगा। एक टीवी टावर कंपनी है, उसका काम है टीवी टावर इंस्टॉल कर, टीवी टावर मतलब जो टावर्स होते हैं ना, उन टावर्स का उन्हें बोलते हैं टीवी टावर, लेकिन उनका यूज जो होता है वो होता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए भी होता है, टेलीफोनिक सर्विसेज, और उनका यूज केबल कोई प्रोवाइड करने के लिए भी होता है। आजकल तो मल्टी यूटिलिटी वाले टावर आते हैं, उन टावर्स का बहुत सारा पर्पस होता है। तो जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो इन टावर्स को लॉन्च करती हैं, इंस्टॉल करती हैं, महंगे होते हैं टावर्स, बहुत ज़्यादा महंगे। तो भाई एक टावर वाली कंपनी है और वो अपने टावर को इंस्टॉल करे हुए है। तो टावर एकदम कंप्लीट है, टावर के नीचे एक बॉक्स है, एक रूम है जहां से वो ऑपरेट होता है और बस आपको स्टार्ट का बटन दबाना है, टावर चल जाएगा। बस एक प्रॉब्लम है टावर को चलाने में, वो ये है कि हमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिली, लाइसेंस नहीं मिला अभी टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस एरिया में। तो ये ना सर्कल होते हैं, सर्कल का लाइसेंस मिलता है आपको, और वो लाइसेंस अभी हमें नहीं मिला, वो जो अभी 2-3 महीने में मिल जाएगा। लेकिन बताओ क्या आज की डेट में मैं इस पर्टिकुलर टावर को अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन कि एसेट जब अवेलेबल फॉर यूज तब माना जाता है जब मैनेजमेंट की इंटेंशन के मुताबिक वो काम करने लायक बन जाए। बताओ क्या ये टावर कैपिटलाइज होने लायक है? आंसर इज नो, क्योंकि मैनेजमेंट अल्टीमेटली इस टावर से क्या करना चाहती है? वो इस टावर से टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, वो इस टावर से और भी कई तरह के वायरलेस सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है। तो जब तक ट्राई से परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये टावर बेकार है, उस पर्पस के लिए नहीं है जो मैनेजमेंट का इंटेंशन है। इसलिए ये वाला टावर अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। जी हां, ऐसा हो सकता है कि जिस दिन लाइसेंस आए उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज भी हो जाए, उसी दिन पुट टू यूज भी हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये वाला टावर अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो ये है एक कॉमन एग्जाम्पल जो अवेलेबल फॉर यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अरे भाई ये आ गया वाला प्रोविजन, जॉइंट कॉस्ट का प्रोविजन। और जॉइंट कॉस्ट हम कैसे दिखाते हैं? इन्वर्टेड वाई से दिखाते हैं। तो कुछ रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से दो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, एक है प्रोडक्ट ए, एक है प्रोडक्ट बी, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। अब
क्या बोल रहा है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट शैल बी मेजर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ जॉइंट और बाय प्रोडक्ट फॉर द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड। तो भाई स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं इस वाले पॉइंट को जहां पर दोनों प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ हो रहे हैं, इसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसके पहले की कॉस्ट को कहते हैं जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट कॉमन है, और इसकी बाद की कॉस्ट को कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। तो भाई बाद की कॉस्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं, बाद की कॉस्ट तो सेपरेट ही है, तो वो जो भी डिफरेंट दो जॉइंट कॉस्ट है ना, दो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें एलोकेट हो जाएगी। तो बाद की कॉस्ट का टेंशन नहीं। टेंशन किस कॉस्ट का सर? जॉइंट कॉस्ट का टेंशन। तो जॉइंट कॉस्ट के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कैश के प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई द सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट should be used as a relevant basis for allocating the joint cost। तो यह है प्रोविजन जो जॉइंट कॉस्ट के रिलेशन में हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आ जाओ अपने नेक्स्ट प्रोविजन में। भाई रॉयल्टी, टेक्निकल नो हाउ फी फॉर प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ सब गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पेड इनकर्ड इन लमसम। अगर कोई आपने लमसम रॉयल्टी पे करी है, विच आर इन नेचर ऑफ वन टाइम पेमेंट, वन टाइम आपने पे करी, जब आपका बिजनेस शुरू हुआ तब आपने अपनी पेरेंट कंपनी जो यूएस में है, कोरिया में है, कहीं और है, उसको आपने रॉयल्टी पे करी, बट वन टाइम रॉयल्टी पे करी, shall be amortized on the basis of estimated output। तो बेसिस देखना, बेसिस क्या लिखा हुआ है, किस बेसिस पे आप amortize करोगे? on the basis of estimated output और benefits derived from the related technical know how। तो भाई जब आपने रॉयल्टी मांगी, जब आपने रॉयल्टी ली, तब वो रॉयल्टी आपको जब प्रोवाइड करी गई तो उसमें राइट प्रोवाइड करा गया प्रोडक्शन का, कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो आपको टेक्निकल नो हाउ भी आपकी पेरेंट कंपनी देगी, फॉरेन की कंपनी देगी, और रॉयल्टी भी, परमिशन टू यूज भी आपको फॉरेन की कंपनी देगी। अब फॉरेन की कंपनी ने ना अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया दैट यू हैव टू पे 1 करोड़ रुपीज इन लमसम फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस रॉयल्टी। आपने कहा ठीक है, हम 1 करोड़ रुपीज दे देते हैं, लेकिन बताओ ये रॉयल्टी को फिर तुम कितने समय तक मुझे बेनिफिट लेने दोगे? तो दो तरीके हो सकते हैं बेनिफिट देने के। नंबर वन, नंबर ऑफ ईयर्स। आपको बोला जाए 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी पे कर दो, 5 साल तक आप इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। एंड नंबर टू, आप ये 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी पे कर दो और आप 1 लाख प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हो मार्केट में। अब वो 1 लाख प्रोडक्ट्स चाहे आप 2 साल में बनाओ, चाहे 3 साल में बनाओ, चाहे 6 साल में बनाओ, रॉयल्टी वैलिड रहेगी। तो दो तरीके हैं स्प्लिटिंग करने के, अमोर्टाइजेशन करने के रॉयल्टी के। नंबर वन, एस्टिमेटेड आउटपुट, जितना भी आउटपुट आपने एस्टिमेट किया है ना, उसके बेसिस पे आप एलोकेट कर दो। दूसरा, बेनिफिट टू बी डिराइव्ड, बेनिफिट जितना जितना जब जब डिराइव हो रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे तो प्रोरेटा कर दोगे आप, 5 साल में प्रोरेटा कर दोगे। और आउटपुट के केस में जितना आउटपुट 1 साल में बनाया आउट ऑफ 1 लाख, उतना आप प्रपोर्शनेट 1 करोड़ रुपए से करके अपना रॉयल्टी का कॉस्ट कंसिडर कर लोगे। तो ये है प्रिंसिपल जो रॉयल्टी के रिस्पेक्ट में हमारे कैस ने हमें बताया। देन रॉयल्टी पेड एज कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ एसेट और on technology transfer in any form will form part of cost, however royalty paid on brand shall not form part of cost of production। तो भाई अगर आपने रॉयल्टी पे किया अपने एसेट की वजह से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है उसकी वजह से, अगर उस वजह से आपने रॉयल्टी पे किया, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने रॉयल्टी पे करी मार्केटिंग से रिलेटेड, मतलब मैं अपनी फॉरेन कंपनी का ना ब्रांड यूज करूंगा, लोगो यूज करूंगा अपने प्रोडक्ट्स में इंडिया में, और जब एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो ब्रांड यूज होगा, लोगो यूज होगा, जो प्रोडक्ट की पैकिंग होगी उसके अंदर ब्रांड यूज करूंगा, लोगो यूज करूंगा, ट्रेड मार्क यूज करूंगा, लाइन जो उनकी पंच लाइन होती है वो यूज करूंगा। अगर आपने मार्केटिंग रिलेटेड रॉयल्टी पे करी तो भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बन सकती वो मार्केटिंग रिलेटेड रॉयल्टी। बहुत लॉजिकल भी है। प्रोडक्शन की रॉयल्टी वही वाली रॉयल्टी होगी जो एसेट्स के लिए पे करी है, या टेक्नोलॉजी के लिए पे करी है, या नो हाउ के लिए पे करी है कि कैसे प्रोडक्ट बनाया जाए। अगर बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए रॉयल्टी पे करी है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, यही कह रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर। देन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इनकर्ड इन हाउस फॉर प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ सप्लाई ऑफ goods or provision of services shall be aggregate of cost of resources used in quality control activities in relation to each type of goods and services। तो अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आपने इनकर करी है, आपको वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करनी चाहिए।
द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड, अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल बाहर से कराया है, एक्सपर्ट को बुलाया क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, तो आपकी कॉस्ट कैसे सर्टेन होगी? शैल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस और अग्रीड प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली attributable thereto, net of trade discounts, taxes, duties refundable or to be credited as input tax credit. नेचुरल सी बात है, अगर आपने थर्ड पार्टी को हायर किया है अपने क्वालिटी कंट्रोल के काम करने के लिए, तो जो भी उसने बिल आपको बना के दिया है वो बिल हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ऐड होगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है सर। Then production or operation overheads representing procurement of resources shall be determined at invoice or agreed price including duties and taxes or other expenditure directly attributable thereto. तो ओवरहेड भाई जितना भी आपने खर्चा किया ओवरहेड्स को प्रोक्योर करने के लिए, वो सारा खर्चा इंक्लूडिंग ड्यूटीज टैक्सेस, शर्त यह है वो रिफंडेबल नहीं होनी चाहिए, आप सारा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दोगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब भाई कई बार क्या होता है, देखो कैश में जो वर्ड्स लिखे हैं वो हमारे लिए गीता है, वो हमारे लिए बाइबल है, हम ना उससे बियॉन्ड जाएंगे ना उससे कम जाएंगे। तो कैश में जितने तरह के अभी आपने एक्सपेंसेस पढ़े कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना, लेने वाले भी पढ़े हैं, नहीं लेने वाले भी पढ़े हैं। अगर इनके अलावा कोई ऐसे खर्चे हैं जो किसी इंडस्ट्री से स्पेसिफिक खर्चे हैं और जो कैश में नहीं लिखे, क्योंकि भाई कैश इतना रोबस्ट नहीं हो सकता कि दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, भाई अजीबोगरीब इंडस्ट्रीज भी होती हैं कई बार, कई बहुत पिक्यूलियर इंडस्ट्रीज होती हैं, कईयों का ऑपरेटिंग कॉस्ट बड़ा अलग तरह से निकलता है। कैश के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज के सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को लिस्ट डाउन कर सके, तो एक जेनरिक प्रोविजन भी डाला है कैश ने। आओ पढ़ते हैं वो जेनरिक प्रोविजन क्या है। इन केस ऑफ प्रोसेस peculiarity of a particular industry, it may not be easily practicable to determine the element wise cost of conversion of cost of product. In such a situation, the company may calculate cost centers cost objective conversion cost. It may be summarized under industry specific operating expenses instead of element wise conversion cost like textile industry, spinning, weaving, processing. तो भाई ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर कुछ स्पेसिफिक खर्चे इनकर होते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोसेस के चलते, जैसे टेक्सटाइल में वीविंग के खर्चे, प्रोसेसिंग के खर्चे, स्पिनिंग के खर्चे स्पेसिफिक इनकर होते हैं, कैश आपको परमिट कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट वाइज उन खर्चों को भी एलोकेट कर दो, उन खर्चों को भी डेबिट कर दो कॉस्ट शीट में, तो परमिटेड है, कैश परमिट कर रहा है। Any abnormal cost, अगर कोई abnormal cost incur हुई है, if it is material and quantifiable, shall not form part of cost of production. Interest and finance costs सर नहीं होती form part of cost of production, हर कैश में हम पढ़ते आ रहे हैं। Impairment loss on assets shall not form part of cost of production. सर ये impairment loss होता क्या है? भाई impairment loss होता है जब book value of the asset is greater than द बेनिफिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट। तो एसेट से मतलब सपोज बेनिफिट जो इनकम मिलेगी वो मिलेगी करीबन 2 लाख रुपए और बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए से आप राइट ऑफ कर दोगे, बुक वैल्यू को कम कर दोगे, इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो कंपनीज जिन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई करता है वो फॉलो करती हैं। तो हम कह रहे हैं भाई हमारे लिए ये नहीं है, हम तो ये इम्पेयरमेंट लॉस, ये रीवैल्यूएशन, इन सबको नोशनल मानते हैं, इनको हम मानते ही नहीं कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंसी पर्सपेक्टिव से, तो हम ये नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। imputed cost shall not form part of cost of production. imputed cost, hypothetical cost या artificial cost, एग्जांपल दूं तो भाई आपका भाई यूएस से पढ़ के आया, वॉटन यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आया, और आपने अपने जो आपके ऑफिस में एक सीट खाली थी ऑपरेशंस मैनेजर की, आपने भाई से कहा भाई 1 साल के लिए तू संभाल ले, अभी तो तू फ्री है, तेरी जॉब भी नहीं लगी, लेकिन हम ऑब्वियसली तुझे पैसे नहीं देंगे, घर की तो बात है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कॉस्ट शीट में ना इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं डाल सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि यार अगर मेरा भाई ना होता तो मैं एक बंदे को हायर करता जो मेरे से 10 लाख रुपीज पर एनम की सैलरी लेता, तो मैं ये कॉस्ट भी कॉस्ट शीट में डालूंगा, ये आप नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज इंप्यूटेड कॉस्ट, मतलब हाइपोथेटिकल कॉस्ट। ये कॉस्ट है नहीं, कैश में हुई भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हुई है। सो सारे कैश का सेम प्रिंसिपल हम सब कैश में फॉलो करते हैं। इंप्यूटेड कॉस्ट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
Cost of production or acquisition or supply of goods or provision of services shall include cost of inputs received free of cost or at concessional value net of input tax credit from the recipient of goods and services, and amortization of cost of free tools, patterns, dies, drawings, blueprints, technical maps, chart, engineering, development, artwork, design, work, plans, sketches and the like necessary for production or acquisition of supply of goods और provision of services। तो भाई जितने भी आपके इनपुट्स यूज होते हैं प्रोडक्शन करते हुए, भले ही वो आपने कंसेशनल प्राइसेस पे इंपोर्ट करे हो, जैसे आप इंपोर्ट करते हो कई बार तो कंसेशनल प्राइसेस पे इंपोर्ट होते हैं, कई बार आप ड्यूटी उस पे नहीं देते, कई बार आपकी सिस्टर कंसर्न होती है, कोई ग्रुप कंपनी होती है वो आपको सस्ते दाम पे अपने इनपुट्स दे देती है, मोल्ड्स दे देती है, डाइज दे देती है, उन सब का खर्चा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना चाहिए। ठीक है सर। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स शैल ऑल्सो इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रीवर्क, रिकंडीशनिंग, रेट्रोफिटमेंट, production or operation overheads and other costs allocable to such activity, adjustment of stock of work in progress and recoveries from sale of scrap and wastages and the like necessary for production or acquisition of supply। भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा आप सोच सकते हो कि होगा, वो सारा का सारा खर्चा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करने की परमिशन है। जैसे रीवर्क, आपने कोई जॉब वर्क असाइन कर दिया किसी और को रीवर्क करने के लिए, रिकंडीशनिंग, रेट्रोफिटमेंट, किसी भी तरह की रीफर्बिशिंग कर रहे हो आप, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करनी ही करनी है। सब्सिडी और ग्रांट, अगर कोई सब्सिडी और ग्रांट आपको मिली है सर, वही अपना नॉर्मल प्रिंसिपल, दे आर टू बी डिडक्टेड फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एनी ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम, अगर कोई ग्रांट आपने डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करी है, मतलब पूरी की पूरी करंट ईयर में नहीं रिकॉग्नाइज करी, थोड़ी थोड़ी करके कुछ सालों में रिकॉग्नाइज करोगे, इसका क्लासिक एग्जांपल होता है भाई कैपिटल ग्रांट। अगर कैपिटल ग्रांट आपको मिलती है, आप पूरी एक साल में खर्च नहीं कर पाते, आप थोड़े थोड़े समय में उसे खर्च कर पाते हो, in the financial statement shall also be reduced from the relevant element of cost of production or supply of goods or provision of services। तो वो deferred value आप धीरे धीरे करके cost of production में से भी less करोगे। The cost of production or acquisition of supply of goods or provision of services shall be determined based on normal capacity or actual capacity whichever is higher। तो अगर आप absorption costing use कर रहे हो तो आपको नॉर्मल कैपेसिटी और एबनॉर्मल कैपेसिटी दोनों में से जो भी हायर है उसके बेसिस पे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एब्जॉर्ब कराना चाहिए या एलोकेट करना चाहिए। एंड द अनएब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट अनएब्जॉर्ब्ड रह गई, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपने एक्चुअली इनकर करी थी और कैश को फॉलो करते हुए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हुए अनएब्जॉर्ब्ड रह गई, शैल बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल कॉस्ट। उसको आप कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाओ और वो एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह ट्रीट होगी। ठीक है सर। अच्छा बता दो जरा फाइन्स पेनल्टीज का क्या करते हैं सर, इनको हम नहीं रिकॉग्नाइज करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरह। फॉरेक्स कंपोनेंट, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन या लॉस हो गया फॉरेक्स कंपोनेंट में, फॉरेक्स कंपोनेंट या तो बहुत बढ़ गया या बहुत कम हो गया। सर अनरियलाइज्ड कैसे होता है भाई? अनरियलाइज्ड होता है जब आप पीरियड एंड पे, जब 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहे होते हो, तब रीइंस्टेट करते हो अपने डेटर्स को, क्रेडिटर्स को, तब अनरियलाइज्ड लॉस हो सकता है। और जब एक्चुअली पेमेंट करने का दिन आया तब जो आपने लॉस इनकर किया उसे कहते हैं रियलाइज्ड लॉस। दोनों ही लॉस को आप नहीं इंक्लूड करते अपनी कॉस्ट शीट में, और फॉरेक्स वाले पार्ट को ना कन्वर्ट करते हो रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन जो रेट चल रहा है आपकी कॉस्ट शीट में, उस रेट पे आपका मटेरियल नजर आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नजर आएगा। सर अगर हमने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें गारंटी के साथ बता सकते हैं कि हम किस रेट पे पेमेंट करेंगे अपने वेंडर को, तब भी क्या जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है उस डेट का हमें फॉरेक्स रिकॉग्नाइज करना है? हाँ भाई तब भी, भले आपने फॉरवर्ड रेट ले लिया हो, भले ही आप कॉन्फिडेंट हो आप किस रेट पे रिकॉग्नाइज करो पेमेंट करोगे अपने फॉरेक्स पार्टी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की डेट पर ही फॉरेक्स कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है सर। एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द एक्सचेंज रेट टिल पेमेंट और अदरवाइज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई क्रेडिट और रिकवरीज का क्या होता है? कोई क्रेडिट हो रही है, रिकवरी हो रही है आपकी प्रोडक्शन के दौरान, इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसे डिडक्ट कर दो। Work in progress, progress stock shall be measured at cost computed for different stages of completion। तो जो different stages of completion के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से आप अपना वर्क इन प्रोग्रेस को डिटरमाइन करोगे और उसी के थ्रू आप अपनी कॉस्ट शीट में उसको एडजस्ट करोगे।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक शैल बी एडजस्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालते हुए, नेचुरली सर। अब देखते हैं असाइनमेंट कैसे होगा भाई, असाइन आप कैसे करोगे इस कॉस्ट को। डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट है अब आपके सामने खर्चा आ गया, ये है आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा। अब इसे असाइन कैसे करोगे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में, आओ वो पढ़ते हैं। Cost of production or acquisition or supply of goods shall be determined on the basis of normal cost basis. For this purpose, abnormal or non-recurring cost shall abnormally low plant utilization, abnormal rejection, expected court orders shall be ignored. Naturally sir, कोई भी एबनॉर्मल नेचर का अगर कॉस्ट होता है ना तो वो हम इग्नोर कर देते हैं कॉस्ट, अपनी मेन कॉस्ट को निकालते हुए। तो हम नॉर्मल कॉस्ट को तो पार्ट बनाते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट को निकाल देंगे, जैसा कि हमने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा। While assigning various cost of elements, various elements of cost, traceability to the goods and services in an economically feasible manner. तो ये वर्ड बार बार हर एक केस में रिपीट हो रहा है, इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर। तो ये वर्ड को जरा एक बार आओ फिर दोबारा याद करते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेबल होते हैं, इनडायरेक्ट वो होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेबल नहीं होते। लेकिन दोस्तों कई बार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी एलोकेट किया जा सकता है, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट और टाइम वेस्ट कर दोगे। तो कहा गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली एलोकेट हो जाते हैं इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर, मतलब जिनका फीजिबल मैनर में एलोकेशन हो जाए, जिनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने से आप कहते हो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, एलोकेशन का अमाउंट कम है, तो मत करो। तो ट्रेसेबिलिटी टू गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज में अगर ट्रेसेबल करने में मैं काबिल हूं इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर, तो आप भाई डायरेक्टली एलोकेट कर दो उस गुड को। अगर आपको लगे नहीं मैं डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकता इस खर्चे को किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, तो आप उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट कर लो। द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू ईच टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी डायरेक्टली असाइंड। Assignment of cost of producing or acquisition or supply of goods which are not directly traceable to goods, जो directly traceable नहीं है, वो दो प्रिंसिपल के बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हो। जी हाँ, स्टैंडर्ड ये प्रिंसिपल हमने सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बेनिफिट्स रिसीव। सबसे पहले ये देखो कि भाई ये खर्चा किस रीजन की वजह से अराइज हुआ है और उस रीजन में इस खर्चे को एलोकेट कर दो। सेकेंड प्रिंसिपल, ये रीजन मत देखो, देखो इस खर्चे का बेनिफिट किसको मिल रहा है और बेनिफिट के बेसिस में खर्चे को एलोकेट कर दो। अगर वो इनडायरेक्ट नेचर का है, अगर वो डायरेक्ट नेचर का है तो चिंता ही नहीं, मैं डायरेक्टली उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे उसे एलोकेट कर दूंगा जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में ये वाला खर्चा एलोकेट होना चाहिए। ठीक है सर। द वेरिएबल प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड शैल बी एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो जो वेरिएबल प्रोडक्शन है, ओवरहेड है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे आप उसे एब्जॉर्ब कराना। और जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो वेरिएबल तो एक्चुअल के हिसाब से, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक होता है एक्चुअल प्रोडक्शन से। फिक्स्ड ओवरहेड को कैसे एब्जॉर्ब कराना? shall be absorbed in cost of production or acquisition of supply of goods on the basis of normal capacity or actual capacity whichever is higher। अभी ऊपर हमने पढ़ा नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी, दोनों में से जो भी ज्यादा हो ना उसके बेसिस पे तुम एलोकेट कर दो। और दोनों में से कम जो होगा वो किस रीजन की वजह से कम होगा? एबनॉर्मल रीजन की वजह से कम होगा। तो अगर वो एबनॉर्मल रीजन की वजह से कम है ना, उसे डाल दो एबनॉर्मल कॉस्ट में। कहां? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में। ठीक है सर। In case joint products are produced, joint cost incurred up to split of point are allocated between products on a rational, equitable and consistent basis, like net realizable value at split of point। तो अगर आपके गुड्स जॉइंट कॉस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई हमने जैसा कि पढ़ा जॉइंट कॉस्ट शैल बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जिस मोमेंट पे स्प्लिट हो रहा है ना आपका प्रोडक्ट, उस मोमेंट पे आप सेल्स वैल्यू के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो जॉइंट कॉस्ट को। वही बात यहां कही हुई है। इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट, अगर बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू शैल बी क्रेडिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। माइनस कर दो नेट रियलाइजेबल वैल्यू अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। मिसलेनियस इनकम, अगर कोई अदर इनकम टाइप की इनकम हो रही है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के दौरान, तो नेचुरली हम उसको क्या करेंगे सर? शैल बी एडजस्टेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब माइनस करना है सर, नेट नेट आपको कॉस्ट को माइनस करके दिखाना है। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एम्प्टी कंटेनर्स, अगर आपके खाली कंटेनर्स हैं और उनको सेल करके कुछ इनकम हो रही है, तो आप उसे माइनस करके दिखा दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में।
ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो भाई आगे है प्रेजेंटेशन, कि हम अपनी कॉस्ट को प्रेजेंट कैसे करेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट में। तो भाई 4 अपेंडिक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं कैश में। हमारे सिलेबस में ये अपेंडिक्स जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ इनके नाम जानने ज़रूरी हैं। तो आओ देखते हैं 4 अपेंडिक्स जिसमें आप इस कॉस्ट स्टेटमेंट को मेंटेन करोगे वो कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स की आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्यूट करोगे अपेंडिक्स 1 में। कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, सर्विसेज अपेंडिक्स 2 में जाएंगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जहां पर आप सिर्फ एक्वायर कर रहे हो, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, अपेंडिक्स 3 में जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ ओपन मार्केट वैल्यू और वैल्यू एज पर गुड्स और सर्विसेज इफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। तो ऐसी कोई सर्विस जो आपके सिमिलर गुड्स की सर्विस हो, जो सिमिलर गुड्स मार्केट में इस समय चल रहे हैं, उसकी अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के ला रहे हो तो वो अपेंडिक्स 4 के अंदर जाएगी। कॉस्ट स्टेटमेंट्स एज सर्टिफाइड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब देखो सर्टिफिकेशन चाहिए किससे? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से। Should enable the business entity to determine the value of taxable goods and services at the time of supply and issue of tax invoice as required under section 31 of CGST Act। तो हर बिजनेसमैन को हमारे पास आना पड़ेगा और ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, एक कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस के पास जाना पड़ेगा। ठीक है सर। सर्टिफाइड कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग पीरियोडिसिटी। कब कब आपको ये सर्टिफाइड कॉस्ट स्टेटमेंट भाई प्रेजेंट करनी है? इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 10(1), द सर्टिफाइड स्टेटमेंट शैल बी इशूड फॉर 6 months पीरियड। तो जहां पर आपकी टर्नओवर लिमिट सेक्शन 10(1) से नीचे नीचे है, वहां 6 months पीरियड में आप इस स्टेटमेंट को दे दो। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ अप्रैल टू सितंबर शैल बी सर्टिफाइड इन द मार्च ऑफ द सेम ईयर। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding year exceeds the time limit, टाइम लिमिट से अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड करती है सेक्शन 10(1) वाली, सर्टिफाइड कॉस्ट स्टेटमेंट शैल बी इशूड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। हर क्वार्टर में आपको ये स्टेटमेंट इशू करवानी पड़ेगी एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से। Certified cost statement shall be issued for completed financial year annually based on audited final accounts on or before 31st December of the next financial year। तो हाँ, आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो प्रोड्यूस कर ही कर रहे हो, इसके अलावा आपको साल में एक बार पूरी की पूरी कॉस्ट स्टेटमेंट पे सर्टिफिकेशन दोबारा चाहिए। तो सर हर कदम पे एक कॉस्ट अकाउंटेंट की यहां पर जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। The cost statement shall be prepared by management and authenticated and signed by any key managerial personnel। तो जो कॉस्ट स्टेटमेंट है प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। उसको ऑडिट करने की या चेक करने की जिम्मेदारी किसकी? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की। तो आपको साइंड ऑडिटेड स्टेटमेंट, ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट लेना है मैनेजमेंट से। इन केस ऑफ कंपनी, पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म। Disclosure shall be made only where material, significant and quantifiable। जहां disclosure material हो, significant हो, quantifiable, वहां पर disclosure करना है। जहां पर आपका change है cost accounting principles में, for the period under review which may be materially affect the cost of production, that should be disclosed along with comparability with the previous period। तो जहां पर भी आप पिछले साल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई और फॉलो कर रहे हो, इस साल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई और फॉलो कर रहे हो, आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू पिछले साल से कितनी चेंज हुई है वो भी सेपरेटली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी डिस्क्लोजर्स के तहत। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आर नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस, द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं किया एज अ कॉस्ट ऑडिटर, आपने एज अ सर्टिफिकेट प्रोवाइडर अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं किया और वो फिगर्स आपने देखी नहीं, चेक नहीं करी, तो भाई आपकी ये फिगर्स डिस्क्लोज होनी चाहिए, डिस्क्लोज आपको ये फिगर करनी पड़ेंगी। Any fact which may have material impact on cost as certified should be disclosed। तो जिस भी फैक्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा, मटेरियल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन पे, उनको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये था थ्योरी पोर्शन ऑफ द न्यू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उल्टा आसान हो गया है। पुराना वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें बड़े बड़े गाइडेंस नोट आए हुए थे और उसमें ढेर सारे प्रोविजंस थे जो एकदम इंट्रिकेट में जाके इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उस पुराने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा हैवी बनाते थे। हाँ, ये वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटिवली लेस डिफिकल्ट एंड रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो आप अपने दिसंबर एग्जाम से पहले इजीली इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हो।